Do not forget to enter your name in chat box. I'm repeating the same every day. Not everyone just entered their name in chat box. I'm repeating again, and I do not wish to repeat it again in every lecture. Just enter your name. It is very difficult for us to maintain our attendance otherwise. Only 14 students have entered their name. 17 are attending the lecture. I don't know what you people are thinking. Anyway, we are here. We have completed the first, second unit, and fourth unit and fifth unit. We have almost completed everything in fifth unit also, but we have seen files. We are left with cookies and session that we will cover today. We will not emphasize more today on cookies and session. I will just introduce you and what are their functionalities and what are few functions that we people use for cookies and session. We will see its practical uses when we will develop project and all. So right now we will just introduce and see a toy example uh, to understand the working of cookies and session. Just to know how to write code for cookies and session. Okay, and then we will go for this XML and HTML5 session, and that would be the end of our session. This is a CSS3 also we will look into some sort, and I think in this month we will be able to finish our syllabus and the complete Feb be there for project work. Okay, so let us come back to tutorial. In previous lecture, if you people have any doubt in previous lecture, you can share with me. And I have seen that very few of you just finished their work. So I'm surprised. I'm at the same time disappointed that why you people are not following the same. Actually, at the beginning, I am expecting that this batch is punctual and reading works on time. I was also putting much effort towards your better understanding, but now I do not feel the same because you people are not working hard really. So I don't know what's the reason. I don't know why you are deviated from your objective. So, but at the same time, I would like to remind you that this is your first semester, and these are few very important papers. If you are failed to learn, then in latter part of the course, more difficult courses will come, and that you may not be able to achieve anything. Okay, so anyway, if you just follow the teacher's remark, then that is sufficient for anything. Anyway, we should proceed for cookies. I just want to show you a video. Uh, if it is visible to you, no, I have to share the odd sound also. Let's share. So, chances are you've been browsing the internet and you've seen a notification. So it is audible. So it was audible or not? Yes, sir. Okay. 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 Thanks.
like this pop up on your screen telling you that. So, chances are you've been browsing the internet and you've seen a notification like this pop up on your screen telling you that this website uses cookies. Most of the time, you just slap that agree button and go about your merry way. But you're likely here because you want to know, what exactly are cookies and how do they work? Well, it's not that sweet, artery-clogging goodness that Grandma whips up in the kitchen. We're talking about website cookies, which are more formally called HTTP cookies. So a cookie is a small piece of data from a specific website that is stored on a user's computer while they're browsing the web. And they can have many functions, such as keeping track of a user's browsing activity in order to serve up targeted information such as ads for goods or services. This is why when you're browsing Amazon for a Halloween costume for your dog, you might see ads for more dog costumes on Facebook later that day. Cookies can also have simple functions like remembering your login details for a specific website, such as Facebook, so that you can close out of it and then reopen it again later without having to log back in again. Cookies can also allow website owners to track exactly how many unique visitors they're getting to their website, because each cookie has its own unique ID. So if a user visits the same website 2 or 3 times in a day, a cookie can allow us to count this as one unique viewer. So website owners can collect more accurate data about their website traffic. So where did the cookie come from, and how did it get its name? Well, the first cookie was invented in 1994 by a 24-year-old programmer for Netscape Communications named Lou Montulli. He was creating an online store for a company that said that their servers were getting too full from storing each individual user's shopping cart data while they were browsing the store. So Lou was asked to figure out a way to store each user's shopping cart data on their own computer, which would then save server space for the company and save them money. So he thought back to an old computing token called the magic cookie, which was used to हाँ क्या हुआ मित्र? सर बीच में ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई। Okay. identify when somebody would log into a system. अभी आ रहा था? Yes sir. By passing a tiny bit of information between the server and their computer. Lou then recreated this concept for web browsing, and thus the modern day cookie was born. Cookies today are still used to identify your computer, but now they have the added function of also tracking your activity, which can be very helpful or a breach in privacy depending on how the website decides to use this information. Which is why you get that little notification whenever you visit a website that uses cookies, because they're legally obligated to inform you in their cookie policy of what they use these cookies for. And now for the age-old question, how does a cookie work? Well, when you visit a website for the first time, let's just say for this example, it's an online store. The website puts a cookie on your hard drive that has its own unique identification code. The site then uses this ID to keep track of your session, the session being your overall visit on their website from start to finish. The reason it does this is to keep track of things like which items you put in your shopping cart, General Data Protection Regulation, which allows users to opt out of the use of cookies if they so choose.
But not all cookies are privacy-breaching parasites, and they will generally help you have a much more enjoyable user experience on the web and save you lots of time and headache. Alright guys, so that was a breakdown of what are cookies and how do they work. If you enjoyed this video, please hit that like button, or if you want to get more Okay, I think screen is visible to everyone. ठीक है, तो जो पिछले कुकीज वाले एग्जांपल में बताया, आई होप you have also experienced the same in your day-to-day life. Meaning whatever product you are looking into some website or Flipkart or somewhere else, the same kind of product you see in your Facebook. And Facebook is also recommending the same. Not only Facebook, but also the Google ads. Google ad is also recommending you a similar kind of product every day. How this is working actually. Today's internet is less stable. Yeah. Okay, Annie. Am I audible perfectly? Yes, sir. Okay. So that is why people are using cookies. So since it has wide application and it is not just a piece of code that we can learn in 1 or 2 or a week lecture, it depends on purpose to purpose what we want to embed in cookies. Therefore, in this session, we will just look into the systematic fundamental of cookies. We will not go into the depth and how to design a real cookies, that we will not look into. We will look into the same if we require the cookies embedding in our projects. So at that time, we will look into that. So why cookies are used is to identify user. तो cookies is एक क्या होता है, एक small file होता है that server embed to the user's computer. ध्यान से सुनो, एक फाइल है जो सर्वर क्या करता है, यानी जो भी साइट आप विजिट कर रहे हो दैट साइट एम्बेड इन योर कंप्यूटर, वो आपके ही कंप्यूटर में रख देता है वो फाइल. अब क्या होता है, ईच टाइम सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट पेज, जब कभी भी आप उसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, सपोज आप फ्लिपकार्ट को विजिट किया, देन फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में छोटा सा फाइल सेव करके छोड़ देगा, अमेज़न. ठीक है, अब क्या करोगे, जब नेक्स्ट टाइम यू विजिट अमेज़न, अमेज़न क्या करेगा, अमेज़न को वो वाली कुकीज फाइल मिल जाएगी. ओके, और इससे वो समझ जाएगा कि इससे पहले आप कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, और वो क्या करेगा, आपको उसी से रिलेटेड रिकमेंडेड जो पेजेस हैं या रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाता है. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यूट्यूब भी यही करता है. सपोज मैं ये देखो, यूट्यूब पे मैं ये सब पढ़ता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये टेक्निकल जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारे टेक्निकल वीडियोस मुझे डिस्प्ले करता है. अगर कोई इंटरटेनमेंट सर्च करता है तो उसे इंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो सर्च करेगा. तो वीडियो जो फीड है, ये फीड हर पर्सन का अलग होता है. क्यों? क्योंकि यूट्यूब कुकीज यूज करता है. ठीक है, अब कुकीज क्रिएट कैसे होता है, सेट कुकीज फंक्शन से. सेट कुकीज फंक्शन में कुकी का नेम होता है, कुकी की वैल्यू होती है, कब एक्सपायर करेगा, इसका पाथ क्या है, कौन से डोमेन के लिए है, और ये HTTP, इसके क्या क्या वैल्यूज हैं, ये हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में. इसने बस बता रहा है कि नेम पैरामीटर जो है ये मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है. क्लियर? अब देखो, क्रिएट एंड रिट्राइव. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि क्रिएट और रिट्राइव कैसे होता है कुकी. तो सबसे पहले कुकी नेम वेरिएबल ले लिया. आप वेरिएबल का नेम नहीं भी लो, डायरेक्ट इस नेम को आप यहाँ रख सकते हो सेट कुकीज फंक्शन में. ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुकीज का जो PHP कोड है
वो HTML से ऊपर है और ये हमेशा ऐसा ही होगा। बोलो। सर प्लीज आप एक बार रीशेयर कर दीजिए ना, स्क्रीन फट रही है। अच्छा ठीक है, कर दे। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ऑलमोस्ट अनक्लियर आ रहे वर्ड्स। यस सर, अनक्लियर ही है अभी। अच्छा अनक्लियर है, ओके। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस सर। यस यस अभी यस सर, क्लियर है अब। क्लियर है ना? ओके, तो ठीक है। मैं क्या बता रहा था कि कुकी क्या होता है, एक छोटी सी फाइल होती है जो सर्वर क्या करता है, आपके ही कंप्यूटर में रख देता है। और जब कभी भी आप उसी कंप्यूटर से उसी पेज सर्वर को विजिट करते हो, दोबारा सर्वर मतलब कोई भी वेबसाइट, उस वेबसाइट को जब दोबारा विजिट करते हो तो वो कुकी भी उस वेबसाइट को मिल जाता है और इस तरह से उसको पता चल जाता है कि पिछली बार आपने क्या विजिट किया था। अमेज़न आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए यही यूज करता है। यूट्यूब भी आपके लिए ऐसा ही कुछ करता है। तो कुकीज कैसे क्रिएट होता है? सेट कुकी फंक्शन होता है। सेट कुकीज फंक्शन में ये सारे वैल्यूज आप दे सकते हो, जिसमें नेम वेरिएबल जो है कंपलसरी है, बाकी सारे वेरिएबल ऑप्शनल है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो कुकीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कुकी का जो कोड होगा वो HTML जो पार्ट होगा, HTML पार्ट उसके ऊपर होगा, यानी HTML जब स्टार्ट होता है उससे भी पहले, यानी सबसे पहले कुकीज का कोड होगा, वो भी PHP टैग के अंदर होगा। तो ये 2 लाइन जो है, ये भी 2 लाइन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको लिखो। यहाँ पे क्या किया, कुकीज का नेम और उसकी वैल्यू वेरिएबल के थ्रू दी गई है। आप डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को भी यहाँ पे लिख सकते थे, उसमें कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, सो इट इज बेटर दैट इज राइटिंग इट्स नेम, ओके। और ये वैल्यू यहाँ पे इसका कुकी का नेम लिख दिया, कुकी की वैल्यू दे दी और टाइम दे दिया, टाइम प्लस दिस, मतलब ये इतना सेकेंड्स होता है डे में और ये 30 डे के लिए किया गया है। क्या लिख रहा है, द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट ए कुकी नेम यूजर विद ए वैल्यूज ऑन डो। एक यूजर नेम का एक कुकी होगा तो जो जिसकी वैल्यू समथिंग होगी, है ना। द कुकी विल एक्सपायर आफ्टर 30 डेज, तो 30 डेज के बाद ये एक्सपायर कर जाए, यानी कि हर बार आज से 30 डेज तक का ही बस ये डेटा सेव करके, ओके। तो जैसे आज अगर ऐसा नहीं कि कुकीज तो बहुत छोटी फाइल है, अगर बड़ी फाइल होने लग जाएगी, यानी अगर पूरा डेटा सेव करने लग जाएगा तो ये अपने आप एक ट्रबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूजर कभी नहीं चाहेगा कि उसका हार्ड ड्राइव का जो कैपेसिटी है वो, क्योंकि हम लोग डेली एन नंबर ऑफ साइट्स को विजिट करते हैं। अगर वीकली वी कुड काउंट एंड वी आर विजिटिंग एट लीस्ट 20 to 50 वेबसाइट्स। और अगर हर वेबसाइट हमारे कंप्यूटेशनल स्पेस का, हमारे हार्ड डिस्क का अगर 5 MB भी लेना लग जाए तो बहुत ज्यादा स्पेस हमारे एक साल में अपने हार्ड ड्राइव पर कंज्यूम हो जाएगा, तो जो यूजर नहीं चाहेगा। इसलिए कुकीज पुट करने वाली साइट्स क्या करती हैं कि इसको लिमिट कर दी है कि एक खास टाइम तक का ही डेटा मुझे चाहिए, तो वो हर 30 डेज पे कुकीज को एक्सपायर कर देते हैं। उसके बाद वो टेम्पोररी फाइल में होता है जो डिलीट कर सकते हो आप, या कभी कभी वो ऑटोमेटिकल डिलीट का भी ऑप्शन उसमें होता है। तो ये वही लिमिटेशन यहाँ सेट कर रहा है। और यहाँ पे स्लैश का मतलब है कि इट इज वैलिड फॉर, स्लैश मीन द कुकीज इज अवेलेबल टू द एंटायर वेबसाइट। ठीक है, अब ये कुकीज को एक्सेस कौन करता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है कुकी, ये कुकी जो है इसको एक्सेस करता है। ठीक है, व्हेन दे then retrieve the value of cookie user using this variable, we also use isSet function to find out। और isSet फंक्शन हमेशा क्या करता है, isSet फंक्शन हम शुरू से देखते आ रहे हैं, चेक करता है कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल है इसमें कुछ वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो कुकी से रिलेटेड जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका नाम है कुकी। ठीक है,
ओके, तो अब HTML पार्ट में कभी भी आप जाके चेक करो कि इज सेट कुकी, ये कुकी जो है, कुकी का पर्टिकुलर कुकी, क्योंकि एक कंप्यूटर में हो सकता है 500-600 कुकीज हो, जितनी भी वेबसाइट आपने विजिट करी है जिसके लिए भी आपने कुकीज को अलाउ किया हुआ है। परमानेंट, देयर आर परमानेंट कुकीज, दैट इज नॉट एन इशू, है ना। वो सब बात की बात है, अभी हम लोग पहले सिंटैक्स सीखे कि इसको लिखते कैसे हैं, परमानेंट कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो बस एक्सटेंशन इशू है, ठीक है। तो ये हमारा एक कुकी नेम था, जो भी कुकी नेम को देखते हैं कि वो कुकी अभी सेट हुआ है कि नहीं। तो इफ इट इज ओके देन वी विल से ओके कुकी नेम इज, अगर ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ नॉट लगा दिया, इफ दिस इज नॉट सेट then we will say this is not set, otherwise we will say cookie name is this and value of cookie is this, etc. ये बस रिट्रीवल का है, इसमें हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, एक सेट कुकीज कैसे, कुकी सेट कैसे करते हैं। कुकी सेट करने के बाद इंपॉर्टेंट क्या था कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है कुकी, जो किसी भी कुकी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब एक्सेस करके उसके साथ क्या करना है, देखो ये एक नाइव एग्जांपल है, तो ये बस क्या कर रहा है, एको कर रहा है। एको करने का मतलब उसके वैल्यूज को प्रिंट करना है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग एको नहीं करते, एक्चुअली में हम इस कुकी के साथ प्ले करते हैं। अब इस कुकी पे कुकी के डेटा के साथ हम लोग बहुत सारा एनालिसिस करते हैं यूजर के डेटा को समझने के लिए। तो बोल रहा है कि द सेट कुकी फंक्शन मस्ट अपीयर बिफोर एचटीएमएल टैग, ये तो ट्रू है। आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो कोई नहीं, अगर हम, ये मेरा कुकी का नेम है, कुकी के नेम और इस वेरिएबल से हम कुकी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम कुकी को एक्सेस कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू को इसी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। देखते हैं, जैसे हमें कुकी को डिलीट करना है, तो कुकी को डिलीट करने के लिए यहाँ पे तो हम पहले कुकी को सेट करते हैं, बाद में कुकी को डिलीट करने के लिए कुकी यूजर इज डिलीटेड, हम सेट कुकीज, ओके। तो ये एक्सपायरेशन डेट जो है वो यूज कर रहा है, दी सेट दिस एक्सपायरेशन डेट टू 1 आवर अगो, जब भी कभी भी मतलब अभी के टाइम से 36 सेकंड पहले, ठीक है। ऐसा कर देने से क्या होगा, अगर हम ऐसा सेट कर देते हैं तो मेरा कुकी डिलीट हो जाता है, ओके। अभी देखो, वी विल कम बैक, चेक इफ कुकीज आर इनेबल्ड, तो इनेबल और डिसेबल का दो चीज हमें चेक करना होता है। मतलब अगर तुम if you are Amazon, then you want to see that whether cookie is enabled in this for this user or not. If it is not enabled, then वो फिर से नया कुकी उसको भेजेगा। हो सकता है कि Amazon की जो कुकीज थी वो 30 डेज के लिए ही थी, 30 डेज के बाद यूजर विजिट करता है तो वो कुकी एक्सपायर कर गया था। अब Amazon आए की वेबसाइट वो फिर से विजिट कर रहा है तो उसे क्या होगा, अमेज़न चेक करेगा कि मेरा कुकी यहाँ पे है कि नहीं, उसको कुकी नहीं मिलेगा। तो वो यूज़र के एक्सपीरियंस को नहीं समझ पाएगा, तो वो क्या करेगा, फिर से अपना एक कुकी उसको भेज देगा, ऐसा कुछ। अगर ऑलरेडी कुकी होगा, तो उस कुकी को वो रिट्राइव करेगा और यूज़र एक्सपीरियंस जो है, यूज़र डेटा उसको रिट्राइव करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल सजेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, the following example, create a small script to check whether the cookies are enabled. First, try to create a cookie, then count cookie array variable, है ना। कुकी, ये जो कुकी वेरिएबल है, इसको काउंट करता है कि इसमें एक भी एंट्री है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें एक भी एंट्री है, इज ग्रेटर देन 0, देन कुकीज आर इनेबल्ड, अदरवाइज कुकीज आर डिसेबल्ड। तो ये हम ग्लोबल कुकीज चेक कर रहे हैं, हम चाहे तो किसी पर्टिकुलर कुकीज को भी चेक कर सकते हैं। इसके एग्जांपल जो हम लोग प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तब हमें मिलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाऊं। यही एक इसका छोटा एग्जांपल हो सकता है कि एको कर रहा है, हालांकि एको हम लोग रियल लाइफ में करते नहीं है, ये तो बस डिबगिंग का पार्ट है। हो सकता है इस लेक्चर का आपको 50% नहीं समझ में आए,
बट दैट इज नॉट एन इशू। यू मस्ट, आपको इतना अवेयरनेस आ गया है कि कुकीज होता क्या है, कुकीज को प्लेस कहाँ पे करते हैं, कुकीज को प्लेस करने के लिए फंक्शन क्या होता है, और कुकीज के साथ क्या क्या किया जा सकता है। मिनी कुकीज को क्रिएट किया जा सकता है, इसको डिलीट किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसमें इनेबल डिसेबल को चेक किया जा सकता है एंड ऑल। ठीक है, इसी की तरह है सेशन। सेशन क्या है, अभी आपने सिस्टम को, जब आप बहुत सारे फॉर्म को फिल करते होगे, सपोज आईटी जेई का फॉर्म किसी ने फिल किया, तो वो आपको 20 मिनट देता है। 20 मिनट तक अगर आप फॉर्म फिल कर पाए तो ओके, अदरवाइज सेशन एक्सपायर कर जाता है। इसी तरह बहुत सारी साइट्स में होती है। सेशन क्या है, वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। जैसे आप फेसबुक की लॉगिन है, फेसबुक की लॉगिन आप सेव करके रखते हो, एक पेज में सेव करते हो तो दूसरे पेज में भी यूज कर पाते हो। सो हाउ इट इज मेंटेन, मतलब मैं अगर सपोज यहाँ पे फेसबुक खोलता हूँ, इस टैब में सपोज मैं फेसबुक खोलता हूँ, या फिर सपोज ये क्लासरूम फाइल खोलता हूँ, ओके, तो ये जीमेल की क्लासरूम यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, और ये यहाँ भी एक्सेसिबल है, दूसरे टैब में भी एक्सेसिबल है। क्यों, कैसे, कैसे दोनों ही टैब में ये वैल्यू शेयर हो रही है, लॉगिन की वैल्यू शेयर हो रही है, लेकिन मैं अगर दूसरे ब्राउजर में जाऊंगा तो ये नहीं खुलेगा। क्लियर, ये वाला नहीं खुलेगा। ये कैसे होता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय सेशन। तो सेशन क्या करता है, कुकी की तरह नहीं होता है, ये आपके कंप्यूटर में कुछ स्टोर नहीं करता है। ठीक है, ये अपने पास स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, when you work with application you open it, do some changes and close it। कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं, जैसे ये वेब एप्लीकेशन है, आईओटी में उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, SaaS। तो व्हेन वी यू वर्क ऑन एन एप्लीकेशन, यू ओपन इट, मैं गूगल क्लासरूम खोलता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ आपको, और फिर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज मच लाइक सेशन, ये एक सेशन की तरह है। द कंप्यूटर नोज हु यू आर। एक्चुअली आपका कंप्यूटर तो जानता है आप कौन है, ये आप जानता है कि कब आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, कब आपने एंड किया, मगर इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम है। वेब सर्वर को नहीं पता कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो, आप कौन हो। ठीक है, तो इसीलिए सेशन यूज करता है। जैसे गूगल को नहीं पता, अगर मैं कोई भी फाइल खोलता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो मुझे मेरे कंप्यूटर को सब कुछ पता है, बिकॉज इट इज मेंटेनिंग इट्स प्रोसेस इन टास्क बार। इफ यू कैन चेक, ये सारी चीजों की प्रोसेस मेंटेन करके रखता है, जिसको पता है कौन प्रोसेस कब खुला बंद हुआ। लेकिन ये सारी जानकारी गूगल को नहीं होती है। तो सपोज जीमेल का भी कोई भी एप्लीकेशन मैं ओपन कर रहा हूँ, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ, कब ओपन किया और कब क्लोज किया। तो फॉर दैट पर्पस दे आर यूजिंग सेशन। समटाइम्स इफ यू डू नॉट नीड, तो आप नहीं मेंटेन करते हो सेशन। बहुत सारी साइट्स होती है जो सेशन मेंटेन नहीं करती है। ये ऑप्शनल फीचर है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी होता है हर वेब के लिए। So session variable solve the problem of storing user information to user across multiple pages। Example, आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता है, यूजर नेम, फेवरेट कलर, एटसेट्रा। ठीक है, कब आपने कब ब्राउजर को लास्ट में बंद किया, एटसेट्रा सब कुछ। तो session variable hold information about one single user and available to all pages in one application। If you need permanent storage, you want to store the, अगर आप इसको परमानेंट स्टोरेज में चाहते हो तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सेपरेट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस के बारे में देखेंगे, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ पीएचपी में, स्टार्ट सेशन का। इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे वहाँ कुकी वेरिएबल था, मेथड में हमारे पास पोस्ट मेथड था, हर जगह हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसी तरह सेशन के लिए भी ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो सपोज एक पेज क्रिएट करते हैं, उसका नाम है session1.php, और ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा PHP सेशन। तो यहाँ पे इसका भी कोड क्या होता है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के ठीक ऊपर होता है, सबसे पहले होता है। तो स्टार्ट सेशन करने के बाद अब आप सेशन वेरिएबल में देखो, यहाँ तो फोर्सफुली इन्होंने ये लिख दिया फैब कलर, ऐसा रियल कोड में होता नहीं है।
ठीक है, रियल कोड जो होता है वो वहाँ के डायनेमिक वेरिएबल्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको वन शॉट में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये वेबसाइट टू वेबसाइट चीजें कंपोनेंट वेरी करती है। आपको क्या यूजर से उठाना है ये डिपेंड करता है। तो सपोज इसने एक ऐसा ही फॉर एग्जांपल के लिए इस HTML पार्ट में क्या किया, सेशन वेरिएबल को में एक एंट्री डाली, उसका एक वैल्यू रखा, फिर दूसरी एंट्री डाली और इसकी एक वैल्यू रखी। ये बस ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे सेशन वेरिएबल जो है वो इस पेज का डेटा, जो डेटा इसने इस पेज से उठाया वो किसी दूसरे पेज में ले जा सकता है, यूज कर सकता है। जैसे सपोज ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड था, है ना, उस तरह आप ट्रीट करो। अभी क्या होगा, गेट द पेज वेरिएबल वैल्यूज। अब इस वैल्यूज को हम लेंगे कैसे, तो क्या बोल रहा है कि एक दूसरा सेशन टू पर PHP क्रिएट करो। हाँ, फ्रॉम दिस पेज वी विल एक्सेस, जो पहले पेज में जो भी हमने सेट किया था वैल्यू, उसको एक्सेस करेंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम लोग PHP फॉर्म्स में करते थे। PHP फॉर्म्स में मैकेनिज्म सेम है। वहां हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता था, ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट वेरिएबल जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह खींचता था। वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है सेशन। तो ये क्या करेगा, ये कोई दूसरा पेज है, इसमें भी हमने सेशन को स्टार्ट किया, और एक्चुअली ये कौन सा पेज है, ये सेशन 2.php है, और ये क्या करेगा, वो पिछले वाले पेज के जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इन दैट वे ये ग्लोबल वेरिएबल क्या पॉसिबल करता है। तो PHP में अगर अभी आप गौर करो, शुरू में बताना वर्थफुल नहीं था, लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि मल्टी पेजेस कम्युनिकेशन जो है वो कब पॉसिबल हो रहा है, जब ग्लोबल वेरिएबल हो रहा है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा कुछ काम चाहिए जो कि एक पेज में रखा हुआ है लेकिन मुझे और भी अदर पेजेस में एक्सेस करने हैं, तो आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। लाइक जब हम लोग फॉर्म डाल रहे थे तो फॉर्म में हमने क्या देखा था कि एक पेज में हम फॉर्म में एंट्री आ रही थी और किसी दूसरे पेज में जाकर हम उसे डिस्प्ले कर रहे थे, यानी मल्टी पेजेस कम्युनिकेशन था। तो यहाँ हमने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। ग्लोबल वेरिएबल क्या कर सकता है, दोनों ही ऑल पेजेस के डेटा को देख सकता है, यूज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो पहले पेज के डेटा को मैनिपुलेट करके अपने पास रखता था और दूसरा पेज वहां से उसे एक्सेस कर लेता था। हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में सी प्रोग्रामिंग में देखेंगे जब हम लोग फंक्शंस को और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, this was all about cookies and session. We will not go into the depth of this part. They are simple functions to destroy, unset. That was trivial for you. I was just intended to introduce you what is this session and filters, and I'm strongly recommending you to finish the lab work that I have given in last class. I have received only few of the links, and that is totally an unfortunate event. What happened with Darshan? Why you are not contributing anything else? And धैर्य कहाँ गया, धैर्य तो आया नहीं। श्वेतकेत, श्लोक, क्षमा, पूर्वेश, प्रखर, किसी ने भी नहीं किया। क्या प्रॉब्लम हुआ? एंड हुसैन,